Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we were studying about the Ambedkar, right? We studied about Dr. Baba Saheb Ambedkar thoughts on equality. See, as we know, Dr. Ambedkar was born on 1891 and he died in 1956 and was the champion of human rights and emancipator of the untouchables. भीमराव रामजी अम्बेडकर उनका पूरा नाम था और पॉपुलरली ही वॉज कॉल्ड एज अ बाबा साहेब. He was born on 14th April 1891. He spent his whole life fighting against discrimination, the system of Chaturvarma and the Hindu caste system. See, he belonged to a Mahar caste जहाँ पे अनटचेबिलिटी वगैरह इनके साथ बहुत किया जाता था. एंड ही वॉज सब्जेक्ट टू सोशल इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन. तो उनका मिशन क्या था? एक ऐसा सोसाइटी बनाने का विच वॉज बेस्ड ऑन जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी. ही वॉज नॉट जस्ट अ थिंकर बट पुट हिज थॉट्स इन एक्शन. देन अबाउट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. सी, बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या किया? ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज़ किया ताकि वो अपने सोसाइटी में जो अनटचेबिलिटी रहती है उसको कम करने के लिए वो कोई मेजर्स नहीं ले रहे थे. He believed if priority is given to political emancipation, it would mean transfer of power from foreign ruler to the upper caste Hindu. He insisted free India. The untouchable community must get a proper share in the power structure. Otherwise, independence would merely means rule by the upper caste. Then suggested state socialism. Dr. Ambedkar propounded the idea of state socialism. He had developed the theory of state socialism in his book State and Minorities. Right? उनके हिसाब से क्या है? स्टेट के हाथ में अपन इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर दे देना चाहिए कंट्रोल करने के लिए ताकि इकोनॉमिक इक्वालिटी हो. बट स्टेट के हाथ उसको स्टेट सोशलाइजेशन बोल रहे हैं. बट स्टेट के हाथ में सब देने का इसका मतलब ये है क्या कि स्टेट अपना मर्जी निभाएगा? नहीं. स्टेट शुड टेल द लाइन ऑफ एक्शन, उनकी प्रोडक्टिविटी और सब कुछ, और प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी थोड़ा सा इनक्रेज करें, तभी क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा. ही स्टेटेड दैट मैन डिफर फ्रॉम ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू हेरिडिटी. सी, हर कोई अलग अलग रहता है, तो इसका मतलब ये है क्या कि बाबा उसको आप अच्छे से काम नहीं दोगे, तो आप जब भी किसी को भी काम दो तो उसकी हैसियत के हिसाब से दो. राइट? उसकी कितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से उनको काम दो, बल्कि उनके साथ भेदभाव ना करो. जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जितना मेहनती है, उसको काम दो. तभी क्या होगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा और तभी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होगा वहाँ पे. ही बिलीव दैट इट इज़ नॉट इनफ टू एन्यूमरेट फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज अनएम्प्लॉयमेंट एंड फियर ऑफ स्टार्वेशन में कंप्लेन इंडिविजुअल टू लूज हिज राइट्स. एवरीबडी शुड बी गिवन फुलेस्ट लिबर्टी. और हर किसी को एक लिबर्टी देनी चाहिए ताकि वो उनका प्रोफेशन अच्छे से चूज़ कर सके और एक्सप्लॉयटेशन जो अदर क्लास कर से है उससे भी वो बच सके. और फिर अगर इक्वलिटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ रहा तो क्या है बाबा? सब कुछ अच्छे से रहेगा, तो अपना नेशन भी अच्छे से चलेगा, इंडस्ट्रीज भी डेवलप्ड होगी. नाउ डॉक्टर अम्बेडकर एंड ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सी, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द drafting committee of the Constituent Assembly of India. His legal experts and knowledge of laws of different countries was very helpful in framing the Indian Constitution. Constitution must be treated as the basic and scarce document and everybody should work accordingly. To avoid the misuse of the Constitution, he detailed provision in the Constitution provided for fundamental rights of the people and gave guarantee of liberty, equality and justice. Incorporated many safeguards for the minorities, example reservation policy, provided for strong central government. Thus, Ambedkar played important role in drafting the Indian Constitution. Then ideal society. Dr. Ambedkar visualized an ideal society based on liberty, equality and fraternity. An ideal society in his view should be mobile, should be full of channels for conveying a change taking place in one part to the other parts. There should be varied and free points of contact with each other modes of association. The society also be plural in character.
It should not be static, rigid, transaction and orthodox in behavior. It should also give fair and equal chance to each and everybody for their progress and bind all the people into common culture bond. The unity of culture, he believed, could be developed only when the society is based on liberty, equality and social justice. Now moving towards the next point, that is the thoughts on caste. अब कास्ट को लेके क्या थॉट थे, पहले महात्मा फुले के थॉट्स पढ़ेंगे, देन विल स्टडी द अम्बेडकर थॉट ऑन कास्ट. The caste system in India is the paradigmatic ethnographic example of caste. See, the caste system in India क्या था, is the paradigmatic ethnographic example of caste. It has origin in ancient India and was transformed by various ruling elite in medieval, early modern and modern India, especially the Mughal Empire and the British Raj. See, it has its origin in ancient India. अब कहाँ पे हुआ था उसका origin? In ancient India में, and was transformed by various ruling elite in medieval, early modern and modern India, especially the Mughal Emperor and the British Raj. It is today the basic of affirmative action programs in India. See, अब ये क्या है, ये एक बेसिक अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम इन इंडिया है. द कास्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट कंसेप्ट्स, वर्ना एंड जाति, विच मे बी रिगार्डेड एज डिफरेंट लेवल ऑफ एनालिसिस ऑफ द सिस्टम. सी, द कास्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट कंसेप्ट. अब कास्ट सिस्टम में क्या थे, दो कंसेप्ट है, एक तो वर्ना एंड जाति, एंड इट वॉज रिगार्डेड एज डिफरेंट लेवल ऑफ एनालिसिस ऑफ दिस सिस्टम. देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, Mahatma Phule's thoughts on caste. It seems ironic that Jyotiba Phule contributed to the domain of knowledge as a potential theorization of caste is critically sidelined in contemporary Dalit discourse. See, it seems ironically that ये ज्योतिबा फुले ने क्या किया है, उन्होंने, उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज था और वो उन्होंने बहुत अच्छे से यूज़ किया. मतलब कास्ट सिस्टम, दलित डिस्कोर्स, इन सब में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. ही हैज़ रिटन एक्सटेंसिवली ऑन वेरियस सबसेट्स रिलेटेड टू कास्ट बेस्ड feudal opposition of middle and lower caste during his time, and tried with a distinct method that ironically has been given greater importance and recognition rather than what he has emphasized over its writing. See, he has written extensively on various subsets. अभी उसने बहुत ज़्यादा लिखा कास्ट पे वगैरह, राइट, कास्ट सिस्टम पे, और जो गलत कास्ट सिस्टम है उसको उसने चेंज करने की बहुत ट्राई की. ही केम अप विथ वेरियस मेथड्स दैट आयरोनिकली हैज़ बिन ट्रीटेड इम्पोर्टेंस, और जो उसके मेथड्स हैं उसको एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस भी दिया है, एक रिकग्नाइजेशन भी दिया है. rather than what he has emphasized over his writing. It seems ironically to read his expression getting more recognition as rhetorical in the various research done upon his socio-political thought. See, it seems ironical to read. See, अब ये रीड करने पर अपने को पता चलता है, अपने को बहुत ज़्यादा पता चलता है अबाउट द रिसर्च. उन्होंने जो रिसर्च किया था सोशल पॉलिटिकल थॉट्स के, जो उसके ऊपर रिसर्च किया, जो उसके ऊपर लिखा, उसके बारे में अपने को बहुत कुछ पता चलता है. कंटेंट रिसीव अ कंजर्वेटिव प्रोपोर्शन देन व्हाट इट डिजर्व. सी, कंटेंट रिसीव अ कंजर्वेटिव प्रोपोर्शन देन व्हाट इट डिजर्व. तृतीया रत्न 1855, ब्रह्माजी कसाब 1869, गुलामगिरी 1873, शेतकऱ्याची असूद 1883, इशारा अक्टूबर 1885, सत्सर वॉल्यूम 1 जून 1885, सत्सर वॉल्यूम 2 अक्टूबर 1885, ग्राम जोशिया संबंधी जाहिर कसाब 1886, सत्यशोधक समाजगत मंगला शतकरश सर्व
पूजा विधि 1887, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक अप्रैल 1889, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक 1891। सी अभी क्या हुआ, उन्होंने जो बुक वगैरह लिखी है उनके अंदर उन्होंने बहुत से ऐसे कंटेंट रिसीव्स अ कंजर्वेटिव पोर्शन देन व्हाट इट डिजर्व्स। तो उन्होंने जो बुक्स वगैरह लिखे हैं उनके नाम बोले हैं, जैसे तृतीय रत्न, ब्रह्माची कसाब, फिर शेतकरियों पे लिखा है, फिर सत्सर के बारे में लिखा है, पूजा विधि के बारे में बुक लिखा है, फिर उनका सत्यशोधक समझो कट इसके बारे में उन्होंने लिखा है। ये सब उन्होंने लिखा है और उसके ईयर्स भी आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ज्योतिबा फुले vehemently criticized any explanation that the caste system was natural and ordained by the creator in Hindu text से ज्योतिबा फुले क्या एक कास्ट सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहे हैं और क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये कास्ट सिस्टम कितना गलत है और ये नेचुरली आया धीरे धीरे करके। और उन्होंने ये हिंदू टेक्स्ट जो है, जब अपन ये वर्णास वगैरह लिखते थे, सब लिखते थे, उसमें ये सब बोला हुआ है ये कास्ट सिस्टम के बारे में। और ये हिंदू टेक्स्ट इज द क्रिएटर ऑफ दिस कास्ट सिस्टम एंड ऑल। इफ ब्रह्मा वांटेड कास्ट, आर्ग्यूड फुले, ही वुड हैव ordained the same for another creature। See, अगर ब्रह्मा को कास्ट सिस्टम चाहिए था तो उसने क्या बोला, he would have ordained by the same for other creature। There are no caste in species of animal or bird, so why should there be one among human animals in the criticism फुले added। See, फुले क्या बोलता है, ये जो कास्ट सिस्टम है ये एनिमल्स बर्ड्स में किसी में भी नहीं है, राइट। हैव यू सीन कास्ट सिस्टम इन एनिमल्स बर्ड, इसमें किसी में है क्या कास्ट सिस्टम एनिमल्स बर्ड्स में, किसी में नहीं है। तो फिर अपन ह्यूमन बीइंग क्यों कास्ट सिस्टम बना रहे हैं, हाँ, तो अपन ह्यूमन बीइंग ने क्यों कास्ट सिस्टम बनाना चाहिए, ऐसा फुले का मानना है यहाँ पर। Brahmins cannot claim superior status because of caste, because they hardly bothered with this when mingling and dining with Europeans। से ब्राह्मण्स को अपन सुपीरियर क्यों बोल रहे हैं कास्ट में, उनको इतना सुपीरियर वाला देना चाहिए क्या स्टेटस, नहीं। यू कैनॉट क्लेम दैम सुपीरियर, क्यों, क्योंकि जब वो यूरोपियंस के सामने आते हैं तो वो सुपीरियर रहते ही नहीं है, वो भी आम आदमियों के जैसे बन जाते हैं ना यूरोपियंस के सामने। तो उनको सुपीरियर क्यों बोलना चाहिए अपन ने, तो उनको भी अपन ने सुपीरियर नहीं बोलना चाहिए, ऐसा फुले का मानना है। प्रोफेशंस डिड नॉट मेक कास्ट एंड कास्ट डिड नॉट डिसाइड वंस प्रोफेशन। से अभी जो प्रोफेशंस है, प्रोफेशंस डिड नॉट मेक कास्ट, राइट। अभी आप कोई भी प्रोफेशन के रहो, हाँ, आपने कास्ट डिसाइड किया है क्या कि बाबा आई बिलोंग टू अ टीचर प्रोफेशन, तो टीचर में कौन आने चाहिए, सिर्फ अपर क्लास लोग आने चाहिए, ऐसा डिसाइड किया है क्या, नहीं। तो फिर कास्ट क्यों डिसाइड कर रही है एक जन का प्रोफेशन, लाइक तू ब्राह्मण है, तू अच्छे कास्ट का है, ये क्यों डिसाइड करना है, तो कास्ट ने क्यों डिसाइड करना है ये सब प्रोफेशन, तो ये गलत है ना। इफ समवन डज अ जॉब दैट इज डर्टी, इट डज नॉट मेक देम inferior in the same way that no mother is inferior because she cleans the extract of her baby। See, अगर कोई छोटा काम करता है, गंदा काम करता है, तो क्या वो इन्फीरियर हो जाता है क्या, इन्फीरियर होता है क्या। अच्छा, अभी जब बेबी बॉर्न होता है, छोटा बेबी, तो वो बेबी का सब कुछ कौन कर, सुसु पॉटी साफ करने का कौन करती है, माँ ही करती है ना। तो फिर माँ गंदी है क्या, फिर माँ को क्यों गंदा नहीं बोलते, माँ भी तो सब वो बच्चे का सब गंदा साफ करती है, सब करती है ना, टाइम टू टाइम नैपी चेंज करती है, सब कर, तो माँ गंदी हो गई क्या यहाँ पे, नहीं ना। माँ जब गंदी नहीं बोलते, जब माँ गंदा काम करती है तो माँ को गंदी नहीं बोलते, तो जो ये डर्टी काम करते हैं तो उनको क्यों इन्फीरियर बोल के गंदा माना जा रहा है। रिचुअल्स, ऑक्यूपेशन और टास्क, आर्ग्यू फुल्ले, डू नॉट मेक एनी ह्यूमन बीइंग सुपीरियर और इन्फीरियर। सी, रिचुअल्स, ऑक्यूपेशन, टास्क, ये किसी को इन्फीरियर या सुपीरियर नहीं मानते, किसी को इन्फीरियर या सुपीरियर नहीं बोल सकते आप इस बेसिस पे, ऐसे फुल्ले बोलते हैं। महात्मा फुले हैड अ विजन ऑफ सोशल जस्टिस थ्रू एडुकेशन। सी, महात्मा फुले का एक विजन क्या था कि बाबा सोशल जस्टिस के थ्रू, education is the best way to give social justice to everyone. The initiative of this towards
Bringing training for lower caste and females are important feature of the struggle of his against Brahmanism. See, the initiative of his towards bringing training for lower caste. See, अभी एडुकेशन दिया, उनको ट्रेनिंग दिया, तो क्या है, लोअर कास्ट फीमेल्स इन सबको एक इम्पोर्टेंस मिलेगा और तब भी वो स्ट्रगल कर पाएंगे अगेंस्ट ब्राह्मण्स. ही इज़ likewise recognized as the 19th century philosopher of modern India. See, उसी तरह उसको he is recognized as the 19th century philosopher of modern India. He emphasized the need of training for lower caste to be able to obtain social rights as well as the flexibility. See, he emphasized the need of training. उसने बोला ये जो लोअर कास्ट को आप प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह दोगे तो क्या है, तब भी वो फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से अच्छे से काम पर कर पाएंगे और तब भी उनको सोशल राइट्स वगैरह सब अच्छे से मिलेगा. Sorry. When one conservation about the social economic state of lower caste, it becomes crucial to discuss the literacy of Dalit. See, when one conversation, see, जब अपन कन्वर्सेशन करते हैं अबाउट सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ लोअर कास्ट तो वो क्या करता है, एक क्रूशियल टॉपिक बन जाता है डिस्कस करने के लिए अबाउट द लिटरेसी ऑफ दलित. मतलब दलित लोगों को कितना एडुकेशन देना चाहिए, क्या देना चाहिए, वो एक क्रूशियल टॉपिक बन जाता है. द सोशल इकोनॉमिक एलिमेंट्स ऑफ दलित विल ऑलवेज बी मोर इंटेंस. सी, द सोशल इकोनॉमिक एलिमेंट्स ऑफ दलित विल बी मोर इंटेंस. इट्स एसेंशियल to achieve education as it's additionally the achievement attached to health, political participation along with other signs of interpersonal development. See, the socio-economic alignment of Dalit will always be more intense. See, जो सोशल इकोनॉमिक अलाइनमेंट ऑफ दलित क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंटेंस रहेगा हमेशा और इट इज़ इसेंशियल टू अचीव एडुकेशन और वो ज़रूरी भी है एडुकेशन पाने के लिए. एज इट्स एडिशनली द अचीवमेंट अटैच्ड टू health, political participation along with other signs of interpretation development. Fulle's political and social ideology was entirely groundbreaking, suggesting strong involvement with societal transformation. See, Fulle's क्या है, political and social ideology was entirely groundbreaking. मतलब उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो एकदम सिंपल सी थी और बहुत अच्छी थी और it was suggesting improvement with societal transformation. During those times, the Sudras and also the untouchables were a dehumanized lot, not just in Maharashtra but whole of India. See, उस वक्त क्या था, शूद्रास एंड अदर अनटचेबल्स. शूद्रास को और दूसरे कास्ट को अनटचेबल्स माना जाता था और उनको ऐसे लाइक वो इंसान ही नहीं है ऐसे ट्रीट किया जाता था उनको, राइट. एंड दिस वॉज नॉट ओनली इन महाराष्ट्र बट पूरे इंडिया में ये शूद्रास और अलग का और एक 2-3 कास्ट को क्या है अनटचेबल्स माना जाता था. मतलब इंसानों जैसा उनके साथ व्यवहार ही नहीं किया जाता था और ये महाराष्ट्र में नहीं होल इंडिया में था. इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट whether untouchable shudras or maybe touchables, they have been all treated as serfs as well as slaves. इंडिविजुअल्स जो लोअर कास्ट के वगैरह थे, वेदर फिर वो शूद्रास रहने दो या और कोई भी टचेबल रहने दो, उनको मतलब अच्छे से ट्रीट किया ही नहीं जाता था. उनको स्लेव्स के जैसे मतलब एक नौकर के जैसे ट्रीट किया जाता था. उस वक्त है ना अपर क्लास के लोगों को ही इम्पोर्टेंस था और ब्राह्मण्स को, मतलब ब्राह्मण्स जो बोले वो सही रहता था. ब्राह्मण्स को बहुत इम्पोर्टेंस था और ब्राह्मण्स के नीचे क्षत्रियस वगैरह आते थे, देवर वो भी थोड़े ठीक थे बट उसके नीचे कास्ट के ना सबको ऐसे स्लेव जैसे ट्रीट किया जाता था. मतलब उनके लिए वो इंसान में आते ही नहीं थे, ऐसा था वो, और उनका एक्सप्लॉयटेशन हो जाता था तो वो गरीब के गरीब ही रह जाते थे. ऑल्दो द रिनाइंसेस हैड स्टार्टेड, हाउएवर द शूद्रास वर हेटेड एज वेल एज डिस्कस्ड टू टेक पार्ट इन सोशल लाइफ ऑफ द नेशन. सी, फिर रिनाइंसेस हैड स्टार्टेड, मतलब रिनाइंसेस मतलब चेंज, कमिंग समथिंग न्यू. जैसे जैसे रिनाइंसेस चेंज हो गया तो क्या हो गया, शूद्रास वेर हेटेड एज वेल एज डिस्करेज. शूद्रास को और ज़्यादा हेट करने लगे और उनको सोशल लाइफ ऑफ द अभी नेशन के इसमें भी उनको कोई हिस्सा नहीं लेने देते थे. जब कितना बुरा ट्रीट करने का एक जन के साथ, देखो इतना बुरा ट्रीट करते थे उस वक्त, सच में ऐसा होता था उस वक्त.
practically they did no right to education. देखो शूद्रास had no right to get education, no social status, ना ही उनको कोई social status देता था. They weren't permitted to make use of public places, visit temple, take ड्रिंकिंग वाटर आउट ऑफ पब्लिक वेल्स एंड टैंक्स. सी उनको परमिशन ही नहीं रहती थी पब्लिक प्लेसेस पे विजिट करो. यहाँ तक भी वो मंदिर भी नहीं जा सकते थे, ना ही पीने का पानी यूज़ कर सकते थे वेल्स और टैंक्स में से. उनका वेल टैंक सब अलग रखा जाता था. और ये वेल टैंक्स जो है सिर्फ अमीर लोगों के लिए, बड़े ब्राह्मण्स उन लोगों के लिए रहता था. मतलब भेदभाव इतना ज़्यादा किया जाता था. मतलब अगर वो मंदिर में भी आ गया, कोई शूद्रास वगैरह आ गए मंदिर में, तो वो मंदिर पूरा अछूत माना जाता था, पूरा ख़राब हो गया. तो मंदिर को पूरा शुद्ध करते थे, गंगा जल वगैरह डाल के पूजा पाठ करके मंदिर को शुद्ध किया जाता था. मतलब इतना ये करते थे उनको ट्रीट ऐसे. फुले एक्सप्रेस्ड ही इज़ कैरिंग आउट अ considerable equality of contribution for a change to access the training. Through its apparent appearance, the government is unaware of the state of अति शूद्रास as well as शूद्रास. फुले ने क्या किया, उन्होंने अपने थॉट्स एक्सप्रेस किए कि बाबा हर किसी ने प्रॉपर कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए. और गवर्नमेंट भी इन सब से बहुत अवेयर नहीं है. और वो एंटी शूद्रास एज वेल एज शूद्रास के बारे में बोल रहा है. इनको शूद्रास एंटी शूद्रास को क्या है, प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह दिया, सब अच्छे से किया ना, तो इवन उनका लाइफ भी बेटर हो सकता है, उनका लाइफ भी अच्छे से सुधर सकता है. फुले रिप्रेजेंट्स द सीरियस व्यू ऑफ हिज ऑन द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट. से फुले क्या कर रहा है, फुले रिप्रेजेंट्स द सीरियस व्यू. फुले ये सीरियस व्यू रिप्रेजेंट करता है ऑन द एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट. 4 मिनट. Through the page of the document of his, he emphasized that the way the advantages of training have been liked by just the individuals belonging to top class. See, through the pages of the document of his. See, अभी उसके अपन डॉक्यूमेंट्स के पेजेस देखेंगे तो अपने को पता चलता है उसने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया है प्रॉपर ट्रेनिंग देने में. प्रॉपर ट्रेनिंग दोगे तो क्या है, इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू टॉपर क्लास एंड ऑल, सबको इंजस्टिस मिलेगा, सबका अच्छे से काम चलेगा. The British Indian government was the hope for the lower caste individual, as it had been the only political force which might fight against the Brahmins. See, the British Indian government, यही एक होप था. उस वक्त ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी और उन्हीं का ही सब कुछ चलता था. सो द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट वॉज द ओनली होप फॉर द लोअर कास्ट इंडिविजुअल. एज उसके अलावा क्या है, इंडियन पॉलिटिकल फोर्स से तो कुछ हो नहीं सकता. मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ही ये ब्राह्मण्स के अगेंस्ट लड़ सकती है और ये ब्राह्मण्स को उनकी असली जगह दिखा सकती है. लाइक उनको जो हायर पोजीशन दे द सोसाइटी है, उनका एक्चुअली दे डोंट डिजर्व सच अ हायर पोजीशन जो उन्होंने आज सोसाइटी में ऑक्यूपाई करके ली है. बट कोई उनको कुछ नहीं कर सकता. तो ये ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट उन्हीं से उनको कुछ थोड़ी सी होप थी कि वो कुछ तो वो चेंज लाएंगे सोसाइटी में. लर्निंग वॉज कम्प्लीटली डोमिनेटेड बाय ब्राह्मण्स. लर्निंग भी प्रोसेस, सारा लर्निंग भी किसके पास था, it was completely dominated by the Brahmins. From the ideas of his on the education, Fulle had also stressed the English training for lower caste. See, अभी एडुकेशन से क्या हुआ, फुले ने बोला इंग्लिश एडुकेशन देना चाहिए लोअर कास्ट को. मतलब अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में भी एडुकेशन नहीं देना चाहिए, उनको एडुकेट करना है तो प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में ही और शी शुड बी एडुकेटेड. From the in way he primarily exposing how the dominance of top caste work in the area of education. से in a way उसने बोला कि बाबा एक टॉप क्लास कैसे काम कर सकता है in the area of education. He proposed the program for the amendment at the education phone. See, उसने एडुकेशन देने की ट्राई की. From the proposal of his, he put forward also the thought of scholarship that will be useful for the masses to get the education. See, आज अपन जो स्कॉलरशिप का कंसेप्ट वगैरह सुनते हैं, ये कब से आया, ये फुले ने निकाला है स्कॉलरशिप का कंसेप्ट, ताकि एडुकेशन हर किसी को मिले और सब तक एडुकेशन जल्दी से जल्दी अच्छे से पहुँचे. विदाउट एनी स्कॉलरशिप द लोअर क्लास विल बी एडिशनली बी एक्सक्लूडेड वंस अगेन ड्यू टू पॉवर्टी ऑफ दिस स्की. अगर स्कॉलरशिप दी तो क्या है, गरीब बच्चों को भी एडुकेशन मिलेगा, नहीं तो क्या है उनके पास पैसा नहीं रहता. पॉवर्टी
पॉवर्टी के कारण उनको पढ़ाई भी नहीं कर पाते थे वो. Also, he asked for the expansion in the number of facilities for remolding the technique as well as the instructor of teaching of school. See, also उसने बहुत सी फैसिलिटीज़ भी एक्सटेंड की ताकि उनको अच्छे से टीचर मिले, अच्छे स्कूल मिले. द लोअर क्लास इंडिविजुअल्स फील एलिनेटेड टू द स्कूल ड्यू टू ब्राह्मण टीचर. सी, लोअर कास्ट की वजह से क्या है, उस लोअर कास्ट इंडिविजुअल क्या है, स्कूल में जाएंगे तो ब्राह्मण टीचर नहीं पढ़ाएंगे, ऐसे वो भी था सब. द लोअर कास्ट इंडिविजुअल्स वर नॉट ट्रीटेड विद द डिग्निटी. सी, लोअर कास्ट के लोगों को क्या है, डिग्निटी ही नहीं मिलती थी कुछ भी. बट सिंपली फुले मोस्टली एडवाइज्ड conceptualizing the system of training so that it might be fruitful to each of the groups of people today in society, not only to Brahmins. See, फुले मोस्टली एडवाइज्ड कंसेप्चुअलिंग द सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग. फुले ने बोला ट्रेनिंग दो ताकि हर कोई सोसाइटी में अच्छे से रह सके, सिर्फ ब्राह्मण्स को ही ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए. फुले मेड हाईली इफेक्टिव पील टू अबोलिश अनटचेबिलिटी एंड ऑल्सो द कंप्लीट कास्ट सिस्टम. सी, फुले ने क्या किया, बहुत ज़्यादा अपील किया ये अनटचेबिलिटी हटाओ ताकि, और ये कास्ट सिस्टम भी हटाओ. ही रिवोल्ट अगेंस्ट द अनजस्ट कास्ट सिस्टम बिलो विच ह्यूज नंबर ऑफ पीपल हैड एंड्योर्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. सी, उसने अनजस्ट कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा रिवोल्ट किया, जो सालों से लोग इसके अंदर फंसे हुए थे. द दलित एट दैट मोमेंट डिडंट हैव सम पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक एजुकेशन राइट. सी, दलित लोगों को उस वक्त सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एजुकेशन राइट्स कुछ भी नहीं था. ही कंडेम्नेड टू मॉरलिटी ऑफ द ब्रह्माफोन. ही स्टेटेड आइडेंटिकली चेंज और टू गो टू अदर इंडिविजुअल. सी, अब उसने आइडेंटिटी चेंज करने की कोशिश की. ही सेड बाय बर्थ ईच आर इक्वल एंड फ्री. सी, बाय बर्थ एवरीवन इज इक्वल एंड फ्री. ऑल द इंडिविजुअल्स हैव नेचुरल राइट्स. सब इंडिविजुअल्स को नेचुरल राइट्स रहते हैं. ही वॉज अ मिलिटेंट एडवोकेट ऑफ राइट्स that are human to be downtrodden. See, he was militant advocacy of rights that are human to be downtrodden. We'll wind up our lecture here. In next lecture, we'll be studying about Dr. Ambedkar's thought on caste. Meanwhile, read the topic well. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.